सोशियोलॉजी में स्लीपी क्लासेस एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, उनकी सोशियोलॉजी की लेक्चर सीरीज फॉलो की। So I did a sleepy classes YouTube marathon. Okay. I would binge sleepy classes day and night. तो स्लीपी क्लासेस के मैंने सारे लेक्चर्स बहुत रिलीजियसली फॉलो करे हैं। मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ और मैंने जो हमारी वीडियो सीरीज सोशियोलॉजी पे सर पड़ी हुई है बहुत ही हेल्पफुल है। मैंने स्लीपी क्लासेस की ऑनलाइन वीडियोस देखी। My name is Vaibhavanand Sharma. In the Civil Services Examination of 2023, I have got rank All India 58. I will be discussing a very important aspect of preparation with you right now, and it is free and affordable courses that are available on internet. Because not all of us can afford the expensive courses that are there in the market. So first I will be talking about the free courses. By free courses I mean the free resources per se. I'm not guaranteeing that it will be an organized systematic course available, but there is a lot of guidance that is available. For example, sleepy classes. Now it is a coaching institute which I think is very ethical when it comes to its approach towards guiding aspirants. They never cut when an aspirant is discussing from where he or she took help, and they also give a very good quality free guidance. For example, in the sociology optional also, if you look at the videos that have been made by sleepy classes, they're very good. Although you should not be under the impression that these are the only source that you will need. Obviously you will have to build up upon it, but it's a good starting point if you are starting the UPSC journey, if you are starting the sociology optional. And also right before prelims there are a lot of questions that come for free by the CP classes. There is PYQ marathon, there is also road to prelims and playlists like that which really helps. Especially the science and technology part. I have been observing that in my various attempts at prelims in which I qualified too, especially the science and technology part. I forgot the name of the sir, I'm so sorry. But many times the questions that were discussed by the sleepy classes playlist, they helped me in cracking the exact questions that came around that topic in prelims. And I think that is what I would say. And also the economics playlist is brilliant. So sleepy classes is one aspect that you can refer to. Also there is a snapshot 12-hour current affair marathon that is conducted by Sudarshan Lodha sir. He runs a very honest institute named Target UPSC. I think it's Pune based. And if you are willing to give just a brush up to your current affairs, and you have referred to whatever source of current affair you might be referring to, and you want to just have a brush up for it, then I think the 12-hour marathon by Dr. Sudarshan Lodha is one that you can refer to. This is another free resource. Third free resource, obviously PT 365 and various other magazines that we have been talking to. We have been referring to, all of us know about it. And other things that I would say is that in Vision IAS Coaching Institute, there is a Abhyas mains test series that is happening right before mains. So many a times it happens that I was referring to Ishita Kishore ma'am's copy and other toppers' copy who wrote Abhyas. I was not able to write Abhyas because it happens at many offline centers and none of it was near my own city. But I referred to Ishita Kishore ma'am's answer sheets. And I was pretty sure that if Ishita Kishore ma'am is writing this quality of answer right before mains, 10 days before mains, 15 days before mains, because Abhyas happens roughly around that time, then if I reach roughly at this level, then it is possible that I can also get into the service. Maybe not that great rank, but I will at least get into the service. So this is a very exceptional free resource that you can refer to, the Abhyas test copies that toppers write right before mains, because that's the level you have to peak. And one more free resource that I would like to tell you all is the Telegram channel of Piyush Kumar sir. He is Peeyush Kumar sir. He is an ethics teacher right now. I think he teaches at Wajiram, but he has its own YouTube channel also, in which he sometimes discusses various aspects of our ethics syllabus like probity, etc. And also he has a Telegram channel. I think you should join it because this absolutely free. And he gives many examples, ethical examples, and he also teaches you how to look at the newspaper, look at what is happening in the current affairs, current happenings from the ethical perspective. So I think this is a very excellent free resource. One more free resource or Telegram channel that I would like to refer to is IAS PCS Pathshala, right? So none of the things that I am telling you right now is endorsed. I have not received any money regarding it. I am not saying it out of money. These are actually what I used to refer to. IAS PCS Pathshala is an excellent Telegram group. It is run by a current PCS officer.
So if you look at his marks, he got very good marks in mains, but somehow in the interview luck did not favor him and he got around 150 marks, and that is how he missed the cutoff by a few digital marks, 7, 8, 9, not more than that. So he runs a channel called IAS PCS Pathshala. Please look at its Telegram channel, look at IAS PCS Pathshala's YouTube channel. I think it will be great. And I think these are pretty much the good people who are guiding freely in this ecosystem, and you can refer to that. I think I was scrolling YouTube one day and I came across one of your videos, and I'm so thankful to that day that I was scrolling it. वीडियोस में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ये सब काफी ज्यादा थ्योरी ऑफ आइडियाज जैसे मैंने देखा था, मुझे अच्छे से याद है मैम। स्लीपी क्लासेस का बहुत बड़ा रोल है मेरे सोशियोलॉजी के 280 मार्क्स में। Shekhar sir's YouTube videos proved to be a very help. I also joined answer writing. I also joined testing in sleepy classes. I completely relied on your channel. एक और पहलू जिसके लिए मुझसे कहा गया था कि मुझे बात करनी है वो है एंग्जाइटी मैनेजमेंट ड्यूरिंग यूपीएससी प्रिपरेशन। मुझे लगता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि हम सब अलग अलग कारणों से इस प्रिपरेशन में आते हैं। हम में से कुछ का कोर रीज़न होता है कि उन्हें सोसाइटी में कुछ गलत दिखता है और उसको वो ठीक करना चाहते हैं। हम में से कुछ अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं। कुछ हम में से अपने लिए एक बेहतर करियर, एक ऑनेस्ट करियर भी बनाना चाहते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी अच्छे से कट जाए, हम एक अच्छे से करियर में अपनी ईमानदारी से अपनी नौकरी करें। हमारे कारण अलग अलग हो सकते हैं, पर मोस्टली हम सबका एक बुके ऑफ रीजंस होता है, इसमें शेड्स ऑफ ऑल दीज रीजंस होते हैं। हम सब सोसाइटी की हेल्प करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराना चाहते हैं, खुद के लिए भी मान सम्मान चाहते हैं। तो इंसान होने के नाते हम सबकी अपने आप से ये सब एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन कभी कभी यही एक्सपेक्टेशंस हमें एंग्शियस बना देती हैं, है ना। यही एक्सपेक्टेशंस हमें थोड़ा बर्डन कर देती हैं, हमारे शोल्डर्स को बहुत ज़्यादा भारी बना देती हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ हमारे लिए हेल्प करने की थी, हमें मोटिवेट करने की थी, हमें प्रोपेल करने के लिए थी, वही चीज़ हमें पीछे खींचने लगती है। तो हमें इस चीज़ में थोड़ा सा स्मार्ट होना है, थोड़ा सा प्रोडक्टिव होना है, हमें थोड़ा लार्जर पिक्चर को भी देख के चलना है, और हमको ये समझना है कि दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, राइट। टेंशन कभी ख़त्म नहीं होती। अभी मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, आई एम श्योर दैट आपको ये लग रहा होगा बहुत ही फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं, मैं खुद भी उनमें से एक हूँ, जिन्हें कैडर की टेंशन है कि यार हमें कहाँ डाला जाएगा पूरे देश में। सो ये टेंशन अब बहुत बड़ी टेंशन बन गई है सेलेक्ट होने के बाद भी। जो IRS बने हैं, इट्स अ ग्रेट सर्विस, वो फिर अटेम्प्ट करने की सोच रहे हैं, उन्हें अभी भी प्रीलिम्स की टेंशन है कि हमें IAS बनना है, हमें IPS बनना है। सो टेंशन कभी ख़त्म नहीं होगी। और अगर आप ऐसी स्थिति में हैं इस प्रिपरेशन के दौरान जिसमें कि आप सुसाइड करने की सोच रहे हैं या फिर आप कुछ गलत कदम उठाने की सोच रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स के बारे में थोड़ा सा सोचिए, अपनी सोसाइटी के बारे में सोचिए, और ये भी सोचिए कि आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। दिस एग्ज़ाम इज़ रियली नॉट द एंड ऑफ द रोड। जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया था उसके शायद 1 या 2 दिन बाद ही मुझे मुखर्जी नगर की एक न्यूज़ पता चली। मैं उस बहन का नाम तो नहीं जानता, पर उसने सुसाइड कर लिया था। तो ये नहीं करना है हमें। ये एग्ज़ाम इतना बड़ा भी नहीं है कि हम इसे अपनी ज़िंदगी से बड़ा बना दें। और हम इस एंग्जाइटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आई थिंक आप में से कुछ लोग भगवान को मानते होंगे, कुछ लोग नहीं मानते होंगे, लेकिन आप ऐसी बुक्स को पढ़ सकते हैं जो आपको हेल्प करें। फॉर एग्जांपल भागवत गीता को पढ़ सकते हैं। अगर आप श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानना चाहते, मत मानिए, आप उसको एक सेल्फ हेल्प बुक के रूप में भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाती है। और हम सब अपने इमोशंस को 100% कंट्रोल तो नहीं कर पाते, हम सब इंसान हैं, हमसे गलती हो जाती है, लेकिन फिर भी हम रफली अपने आप को ऐसे ट्रेन कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर सिचुएशन ख़राब हो गई तो हम एक लार्जर देन लाइफ पर्सपेक्टिव भी लेके चल सकें, ताकि हमें कोई भी माइक्रो रियलिटी ओवरवेल्म ना करे। आप मेडिटेट करने का भी ट्राई करिए। मेडिटेशन का ऐसा है कि हो सकता है कि हम सब बहुत ज़्यादा टेक्निकली सुदर्शन क्रिया ना कर पाएँ या फिर कुछ और ईशा क्रिया ना कर पाएँ। तो हमें क्या करना है कि हम सिर्फ ब्रीदिंग को ही कंट्रोल कर लेते हैं। तो हम 5-10 मिनट दिन में निकाल के, चाहे सुबह के समय या शाम के समय, आप सिर्फ अपनी ब्रीदिंग को ही सुन लीजिए। मैं तो इतना ही करता था, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ योगा में या ब्रीदिंग में या फिर प्राणायाम में। मैं अपनी ब्रीदिंग को ही सुन लेता था, और उससे एक फ़र्क ये आया कि मुझे सोते वक्त सपने आने बंद हो गए थे। तो मैं जब सोता था तो मुझे कोई ऐसे सपने नहीं आते थे जो मुझे स्ट्रेसफुल करें या फिर मेरे दिमाग किसी और जगह चल रहा है सोते हुए भी। मैं सोता था तो आई यूज़ टू स्लीप लाइक अ बेबी। तो ये एक बेनिफिट आपके पास आएगा, और आप जब उठेंगे तो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से दिन को शुरू करेंगे। डिजिटल मीडिया को जितना हो सके प्लीज़ मिनिमाइज़ करिए। मैं अभी जब सेलेक्ट हुआ हूँ तब मैं इंस्टाग्राम पे आया हूँ, और मैंने देखा मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ रिक्वेस्ट हैं मैसेज रिक्वेस्ट लोगों की,
और उसमें कोई ये कह रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको डंप कर दिया, कोई लड़की कह रही है कि बॉयफ्रेंड ने डंप कर दिया, सब मुझसे राय भी मांग रहे हैं कि प्रिपेयर कैसे करें, और फिर ये भी कह रहे हैं इमोशनल टर्मोइल हुआ है। तो मैं कहीं ना कहीं देख के ये सोचता था कि इतनी सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स, और आप इंस्टाग्राम पे हो, और आप यूट्यूब भी चला रहे हो फालतू में, आप इंस्टाग्राम भी चला रहे हो, लोगों को देख भी रहे हो, आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो इंस्टाग्राम पे लोग अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं वो उनकी लाइफ की एक बहुत ही ग्लैमराइज पिक्चर है। चाहे वो मेरा इंस्टाग्राम हो, किसी और का हो, वो एक ग्लैमराइज पिक्चर है, वो हमारी लाइफ की रियलिटी नहीं है। ठीक है, देयर इज़ ऑलवेज अ स्टिंकी एंड अगली साइड विच इज़ ऑलवेज हिडन, नोबडी प्रोजेक्ट्स दैट ऑन इंस्टाग्राम पिक्चर्स। सो आई वुड से दैट इंस्टाग्राम में लाइफ बहुत फैंसी लगती है, पर रियल लाइफ में लाइफ थोड़ी आधार कार्ड की पिक्चर जैसी होती है। तो आपको किसी से भी जो है एक रिलेटिव डिप्रीवेशन में आने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को रिलैक्स रखिए, ये एग्ज़ाम नहीं होगा तब भी हम कुछ बहुत बेहतर कर लेंगे। प्लान बी के बारे में फ़ोकस करना कहीं भी तरीके से दुर्बलता नहीं है, निर्बलता नहीं है, ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अगर आपने 1-2 साल इस प्रिपरेशन में लगा दिए हैं, आप प्लान बी को भी खूबसूरत एक प्लान बनाइए, उसके लिए भी थोड़ा सा एक्साइटेड रहिए, आपकी टेंशन कम होगी। एंड आई होप कि आप कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार जो चीज़ें मैंने कही, मेडिटेशन, भागवत गीता, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे और कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे और एंग्जाइटी को मिनिमाइज़ रखेंगे। दिस इज़ ओनली वन लाइफ एंड वी हैव टू लिव इट फुली। थैंक यू।